Hello everyone. Today I am going to talk about prematurity or preterm baby, an important topic in neonatal care. So first, let us discuss or understand the definition. Premature or preterm baby is one who is born before 37 completed weeks of gestation. So because of they early arrive, their organs like lungs, brains, digestive system are not fully developed. They are usually smaller in size and they may struggle to function independently, especially with breathing and temperature control. So, prematurity is mainly about immaturity of body systems. Classification of premature babies, they are classified based on the gestational age. So, the first one is late preterm from 34 weeks to 36 weeks plus 6 days. Moderate preterm from 32 weeks to 33 weeks plus 6 days, and very preterm is 28 weeks to 31 weeks plus 6 days. And extremely preterm are the one who are born before 28 weeks of gestation. The earlier the baby is born, the higher the risk. Extremely preterm babies often need intensive care, that is NICU. Now the classification based on the birth weight. Low birth weight, the babies who are less than 2500 grams in weight. Very low birth weight babies who are less than 1500 grams in weight, and extremely low birth weight babies whose weight are less than 1000 grams. So lower weight, greater complications. Weight is a strong indicator of survival and development. Now let us discuss the causes or risk factors for premature babies. There is usually no single cause. Instead, multiple factors can act together and trigger early labor or premature babies. So, first one is maternal factors, in which hypertension और preeclampsia, जो high blood pressure होता है वो blood flow reduce कर देता है placenta को, and this can make the baby unsafe inside the womb, so doctors may need to deliver it early. Diabetes mellitus, अगर poorly controlled diabetes है तो it can lead to कॉम्प्लिकेशंस लाइक एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है और ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ प्रीटर्म बर्थ. नेक्स्ट इज एनीमिया एंड malnutrition. If the mother is undernourished, the baby may not grow properly and the body may initiate early labor. Smoking, alcohol and drug use, these reduce oxygen supply to fetus and damage placental functions, which increase the risk of prematurity. Then short interpregnancy intervals, it also contribute to premature labor. Next are the placental factors. The placenta is the crucial for oxygen and nutrient supply, so problems here can lead to prematurity. So first one is placenta previa. जो placenta है वो cover कर देता है cervix को, which can cause bleeding and may require early delivery. Placental abruption, जो placenta है वो separate हो जाता है uterus से before delivery, जो कि एक emergency situation है और immediate delivery इसमें जरूरी होती है. तो इन केसेस में भी प्रीमेच्योर डिलीवरी जो है वो बेबी की हो सकती है. नेक्स्ट आर द फीटल फैक्टर्स. सो फर्स्ट वन इज मल्टीपल प्रेगनेंसी, जो यूट्रस होता है ओवर डिस्टेंडेड हो जाता है, जो ट्रिगर करता है अर्ली कॉन्ट्रैक्शंस को, और अर्ली डिलीवरी जो है वेरी कॉमन होती है इन मल्टीपल प्रेगनेंसी. देन कंजेनिटल एनोमलीज, जो स्ट्रक्चर और जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, may make it difficult for the pregnancy to continue normally, so it can also contribute to prematurity. Intrauterine growth restrictions, when the baby is not growing properly, early delivery may be necessary to prevent the complications. So problems with the baby can signal that continuing pregnancy is risky. Next are the characteristics of premature baby. फिजिकल फीचर्स जो उनमें दिखाई देते हैं. फर्स्ट वन इज लो बर्थ वेट. जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं यूजुअली उनका वेट होता है 2.5 kg से लेस होता है, because they did not get enough time to grow inside the womb. The earlier the birth, the lower the birth weight. Then
थिन रेडिश स्किन और विजिबल वेन्स होती हैं उनकी. देयर स्किन इज वेरी थिन और डेलिकेट. ब्लड वेसल्स कैन बी सीन इजीली गिविंग अ रेडिश अपीयरेंस. रीजन क्या है, जो स्किन लेयर है वो फुली डेवलप नहीं हुई होती है एंड देयर इज अ वेरी लिटिल फैट अंडर द स्किन. जो प्रीमेच्योर बेबीज हैं, these babies have very little body fat या subcutaneous fat. Fat normally helps in keeping the body warm. Because of less fat, they lose heat quickly and they are at high risk of hypothermia. Abundant lanugo hairs. जो body होती है वो cover होती है with soft fine hair called lanugo. This is normal in early fetal life. If full term babies, जो lanugo है वो mostly disappear हो जाते हैं, but premature babies में they are still present, showing immaturity. Then soft ear cartilage. जो ear पिन्ना है वो soft होता है और easily fold हो जाता है. They may stay folded when bent. रीजन क्या है, जो कार्टिलेज है वो फुली डेवलप नहीं हुआ होता है. इन फुल टर्म बेबीज जो ईयर है वो फर्म और स्प्रिंग बैक हो जाते हैं क्विकली. देन नेक्स्ट वन इज वीक क्राई. जो बेबी है उसकी क्राई सॉफ्ट और वीक होती है ड्यू टू अंडर डेवलप्ड लंग्स एंड मसल्स. लेस एनर्जी और स्ट्रेंथ होती है. दिस कैन ऑल्सो इंडिकेट रेस्पिरेटरी वीकनेस. नेक्स्ट इज अनडिसेंडेड टेस्टिस होती हैं अगर मेल है तो, और फ्यू सोल क्रीजेस हो जाती है. Next are problems of premature baby. Let us understand them by system wise. So first one is respiratory system. Premature babies के क्या होते हैं, mature lungs होते हैं, lack of surfactant which can lead to RDS, that is respiratory distress syndrome, and may also develop apnea, temporary stopping होती है breathing की. रिजल्ट क्या है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग होगी एंड मे नीड ऑक्सीजन, CPAP और वेंटिलेटर की जरूरत हो सकती है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन. बेबीज जो हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लेस बॉडी फैट, लार्ज सरफेस एरिया होता है और इमेच्योर टेम्परेचर कंट्रोल होता है, विच रिजल्ट टू बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो क्विकली ड्रॉप करता है एंड इट कैन लीड टू हाइपोथर्मिया. सो दे नीड इंक्यूबेटर और KMC की जरूरत होती है उनको. नेक्स्ट इज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ये कॉमन होता है. और फीटल ब्लड वेसल्स फेल्स टू क्लोज आफ्टर बर्थ. Abnormal blood flow होगा, can cause breathing difficulties and heart strain. Next are gastrointestinal problems. Poor sucking and swallowing reflex होएगा, weak digestion होएगी जिसकी वजह से difficulty in breastfeeding and may require tube feeding या गवास feeding की जरूरत पड़ सकती है. Risk of serious condition like necrotizing enterocolitis भी हो सकता है. Next is nervous system. ब्रेन जो होता है फुली डेवलप नहीं हुआ होता है तो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं सकिंग स्वेलिंग वो वीक होते हैं. सो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के चांसेस या ब्लीडिंग इन ब्रेन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. पुअर कोऑर्डिनेशन और डिलेड डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं. देन मेटाबॉलिक इश्यूज. इमेच्योर मेटाबॉलिज्म कैन लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया जो लो ब्लड शुगर है, और हाइपोकैल्सीमिया दैट इज लो कैल्शियम लेवल्स. कैन कॉज वीकनेस, सीजर और पुअर फीडिंग. नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम. जो इम्यून सिस्टम होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है. दे आर हैविंग लेस एबिलिटी टू फाइट जर्म्स. ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या है कि हाई रिस्क ऑफ सेप्सिस होता है, सीरियस इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, रिक्वायर स्ट्रिक्ट हाइजीन एंड मॉनिटरिंग. नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस इन प्रीमेच्योर बेबीज. ये जो कॉम्प्लिकेशंस है राइज होती हैं बिकॉज द बेबीज ऑर्गन्स आर इमेच्योर और वल्नरेबल होते हैं. सो फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो लैक ऑफ सर्फेक्टेंट इन लंग्स की वजह से होता है. इट कैन लीड टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और बेबी जो है वो शो कर सकता है फास्ट ब्रीदिंग, चेस्ट रिट्रैक्शंस एंड नीड फॉर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर. नेक्स्ट इज सेप्सिस. ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन जो है वो इजीली रैपिडली स्प्रेड कर जाएगा बॉडी में, और साइंस होंगे पुअर फीडिंग, फीवर और लो टेम्परेचर और लेथार्जी. दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट ट्रीटेड अर्ली. Next is jaundice, yellow discoloration of skin or eyes, that is jaundice due to immature liver. अगर ज़्यादा होगा तो it can affect brain, और ट्रीटमेंट इसके लिए हमें फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है. देन हाइपोथर्मिया.
इनएबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू लेस फैट, थिन स्किन, लार्ज सरफेस एरिया अगर होता है तो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ इफ अनट्रीटेड. हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर ड्यू टू पुअर फीडिंग एंड इमेच्योर मेटाबॉलिज्म, वीकनेस, इरिटेबिलिटी और सीजर्स के चांसेस रहते हैं इफ देयर इज हाइपोग्लाइसीमिया. रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, आई डिसऑर्डर होता है ड्यू टू एबनॉर्मल ब्लड वेसल ग्रोथ and it can lead to vision problems or even blindness if severe. Developmental delay, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, अफेक्ट करती है ग्रोथ को, लर्निंग एबिलिटी को और मोटर स्किल्स को. सो कॉम्प्लिकेशन कैन बी शॉर्ट टर्म, जो इमीडिएट होती है जिसमें आरडीएस, सेप्सिस, जॉन्डिस, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया आता है. ये इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो होती है बेबी को हो सकती है, नीड अर्जेंट ट्रीटमेंट. लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस है, दे आर हैविंग लेटर इफेक्ट ऑफ प्रीमेच्योरिटी, दैट इज रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी एंड डेवलपमेंटल डिले. So these may appear months or year later and require follow-up care. Now next is the management of premature baby, in which the steps include immediate care of birth at birth, जिसमें आता है सबसे पहले हमने premature baby की warmth जो है वो maintain करके रखनी है. That is, we have to dry the baby immediately after birth, provide skin to skin contact, that is KMC, और रेडिएंट वार्मर्स और इंक्यूबेटर्स का यूज करना है. देन एयरवे एंड ब्रीदिंग के लिए हमने एयरवे क्लियर करना है अगर जरूरत है बेबी को. असेस ब्रीदिंग, प्रोवाइड ऑक्सीजन अगर जरूरत है. देन कॉर्ड केयर, जिसमें एसेप्टिक टेक्निक्स हमने मेंटेन रखनी है और ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के लिए उसको चेक करना है. देन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर. मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर में जो प्रीमेच्योर बेबीज हैं वो प्रोन होते हैं हाइपोथर्मिया को, तो हमने उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है बाय केएमसी या इंक्यूबेटर में बेबी को रखेंगे तो प्रोवाइड इंक्यूबेटर केयर, वार्म क्लोथिंग एंड कैप से, एंड अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर ऑफ द बेबी. नाउ नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन मैनेजमेंट. सबसे पहले तो जो बेबीज हैं उसमें हम प्रेफर करते हैं ब्रेस्ट मिल्क को ही. सो अगर बेबी सक नहीं कर रहा है तो हमने एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो है बेबी को देना है. ट्यूब फीड करा सकते हैं अगर ज़्यादा प्रीमेच्योर है. जो फीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल होगी, फ्रीक्वेंट फीड्स होएगी एवरी 2 to 3 आवर्स. आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स के बाद हमने बेबी को फीड करानी है. अगर फीड नहीं ले रहा है तो इफ बेबी कैन नॉट टॉलरेट ओरल फीड्स तो हमने उसको आईवी फ्लूइड्स पे डालना है. नेक्स्ट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. इसको चेक करने के लिए हमने बेबी को मॉनिटर करना है फॉर इनटेक आउटपुट चार्टिंग, डेली वेट मेजरमेंट करना है उसका, एंड वॉच फॉर डिहाइड्रेशन एंड ओवर हाइड्रेशन. नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी केयर. बेबी को मॉनिटर करना है फॉर रेस्पिरेटरी रेट एंड एफर्ट्स. ऑक्सीजन थेरेपी देनी है इफ नीडेड. CPAP और वेंटिलेटर सपोर्ट दे सकते हैं इन सीवियर केसेस और सीवियर प्रीमेच्योरिटी, एंड वॉच फॉर एपनिया. And then next is the infection prevention. Strict hand washing should be there. Aseptic technique should be used. Limited visitors होने चाहिए because the baby is on high risk of infection, and early detection of the sepsis. Now drug therapy if needed. Antibiotics देने हैं अगर infection suspected है. Vitamin K at birth हमने immediate care में ही दे देना है. Then surfactant therapy for lung immaturity है अगर तो. Then monitoring and assessment. We have to assess the vitals, body weight, reflexes and activity, blood glucose level of the baby. Prevention of complication के लिए जो common complications like hypothermia, hypoglycemia, RDS, jaundice, infection, we have to identify them early and to treat them as early as possible. नेक्स्ट इज ऐसे बेबीज को हम थर्मो रेगुलेशन के लिए केएमसी देते हैं, जिसका मेन बेनिफिट है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को, एक बॉन्ड बनाता है मदर और बेबी के बीच में, और रिड्यूस करता है मोर्टालिटी को. जो पेरेंटल एजुकेशन और डिस्चार्ज केयर देनी है हमने उनको बताना है फॉर द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 6 months. वार्मथ कैसे मेंटेन करनी है, घर पे बेबी को वार्म रखना है, अननेसेसरी एक्सपोजर जो है वो अवॉइड करना है, बेबी को कैप और ग्लव्स पहना के रखने हैं. रिकॉग्नाइज डेंजर साइंस. अगर पुअर फीडिंग है, फास्ट ब्रीदिंग है या फीवर है और हाइपोथर्मिया है तो उसके डेंजर साइंस जो है उनके लिए उनको एजुकेट करना है.
so that they can find them and take the baby hospital as early as possible. Then educate them about follow-up visits. अब नर्सिंग केयर में क्या है, सबसे पहले हम असेस करेंगे वाइटल साइंस, बेबी के रिफ्लेक्सेस, स्किन कलर, फीडिंग एबिलिटी क्या है. देन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेंगे, सबसे पहले देयर इज रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया, सो इन्फेक्टिव थर्मोरेगुलेशन. आरडीएस के चांसेस है, सो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, जो न्यूट्रिशन है बेबी सक नहीं कर पा रहा है, तो देयर इज इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एंड देयर इज रिस्क फॉर इन्फेक्शन ड्यू टू डिक्रीज्ड इम्यूनिटी. इंटरवेंशन क्या है, मेंटेन करेंगे वार्मथ को, ठीक है, इंश्योर करेंगे एडिक्वेट ऑक्सीजन, असिस्ट इन फीडिंग, प्रिवेंट इन्फेक्शन by giving antibiotics or by using aseptic techniques, and provide developmental care, minimal handling or low noise. डिस्चार्ज के क्राइटेरिया क्या रहेगा बेबी का, अगर बेबी का बॉडी टेम्परेचर स्टेबल है, हीट प्रॉपरली ले रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, कंसिस्टेंट वेट गेन है, कोई अपनी एपिसोड्स नहीं है, और पेरेंट्स जो हैं बेबी केयर के लिए ट्रेंड है, तो इस क्राइटेरिया के अंदर हम बेबी को जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं, घर भेज सकते हैं, और उनको होम केयर एडवाइसेस दे सकते हैं, लाइक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, टू मेंटेन द वार्म, हैंड हाइजीन, क्राउड और एक्सपोजर को अवॉइड करना है बिकॉज इट कैन लीड टू इन्फेक्शन, रेगुलर फॉलो अप विजिट्स होनी चाहिए, और इम्यूनाइजेशन एज पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. प्रोग्नोसिस क्या है, डिपेंड ऑन जेस्टेशनल एज और बर्थ वेट पे इसका प्रोग्नोसिस जो है बहुत डिपेंड करता है. अगर वेट जो है बेबी का बहुत ही कम है, या बेबी बहुत पहले जो है 28 वीक से पहले पैदा हो गया है, तो देयर इज उसका प्रोग्नोसिस जो होगा थोड़ा पुअर होगा. अर्ली डिटेक्शन, जितनी जल्दी हम डिटेक्ट कर सकें, प्लस निकू जो है बेबी के सर्वाइवल को इम्प्रूव करता है, और लॉन्ग टर्म फॉलोअप जो है इसमें बहुत ज़रूरी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, subscribe and share.